eaten raw without cooking. What are those things? Fruits and many of the vegetables also, like tomato we can eat raw, radish, carrot, all these things we can eat raw. But few of the things are eaten by the help of cooking method only. And cooking makes a food very delicious and tasty. And it kills the germs also in the food, which are very poisonous for our body, which are not good for our body, right? Now what are the methods of cooking? We will learn about that today. First is boiling. What is boiling? When we put a thing in hot boiled water and the things are boiled, and then after that we remove that water and then we eat that food. That is boiling. Now what are the things which are eaten by the help of boiling? Eggs, potatoes, vegetables, rice and pulses. Okay, these are the things, rice and pulses, eggs, potatoes, which are eaten only after they are boiled in water. Before that we cannot eat them. Then steaming. What is steaming? By the help of the steam that comes, these things are cooked. What are those things? Peas, idli, dhokla, khaman dhokla, right? That's not made by boiling, right? Water is put in the vessel, and on the top of that vessel in which water is there, we put that mixture of besan and that, and then we can steam. We have to steam that. That is known as khaman dhokla, right? Then frying. What is frying? In a lot of oil in a kadhai, we put these things and we fry them, and then we eat them. What is that like? Jalebis, puris, kachori, samosa. These are all cooked by deep frying in a oil in kadhai. Then baking. What is baking? Cake, biscuits, buns and bread. These all are available on a bakery shop. Cakes we eat, right? So these all are baking items. Yes children, so roasting. Roasting is you are putting the things directly on fire. You are greasing it with oil first, then putting it directly on fire. So that is known as roasting. It will cook the food, whatever you are eating. So fish, potato, brinjal and chicken. Okay. Now vessels used for cooking. What are the vessels we are using for cooking? So that is different types of stoves as well as the fuels used in are listed below. Different types of vessels we are using. First one is chula. Chula is made by the help of the wood. We are burning wood, and on the top of that we are keeping the vessels on them. So that is chula. Angithi is we are putting coals inside that, burning coal. That is angithi. Then kerosene stove. Kerosene you all know. Then LPG stove. LPG gas you are using, right? Then solar cooker, by the help of sun we are using it, that is the solar cooker. Then microwave, by the help of ultraviolet rays the food is cooked inside that, and some timing is also there, limited time. In that you get the food very fastly and easily, right? And hot plate like this. So these are the different vessels which you can make your food delicious and tasty. Okay? So that's all for today. Thank you. Bye bye. हेलो बच्चों, आई एम बैक। और आज हम लोग देख रहे हैं मेथड्स ऑफ कुकिंग। ठीक है, मेथड ऑफ कुकिंग से पहले हम लोग देखें कि हम लोग भोजन को किस तरह से खाते हैं। आपको पता है हम लोग अलग अलग तरह से भोजन को खाते हैं। कुछ भोजन ऐसा होता है जिसको कि हम लोग कच्चा यानी रॉ के रूप में खाते हैं। जस्ट लाइक रॉ के रूप में हम लोग फ्रूट्स को लेते हैं, है ना, सीधा बाज़ार से लेकर आए, वॉश किया और उसके बाद काट करके खा लिया, यानी कि उसको हमने कहीं पर भी पकाया नहीं, तो वो हमारा रॉ फूड हो गया। जैसे कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जिनको कि हम रॉ के रूप में यानी कि कच्चा ही खाते हैं, जैसे गाजर, मूली, शलजम, बीटरूट, है ना, ये चुकंदर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम लोग कच्चा ही खाते हैं। इनको हमको पकाने की ज़रूरत नहीं होती और समटाइम्स हम लोग इनको कुक भी करते हैं, लेकिन ये ज़्यादातर मोस्टली लोग जो है वो कच्चे रूप में ही खाते हैं। लेकिन हम बाकी भोजन जो है हम लोग कच्चा नहीं खा सकते, उन्हें हमें पकाना ही पड़ता है। जैसे लेडीज़ फिंगर यानी कि आपकी भिंडी, ठीक है, ग्वारफली है, आपके बैंगन है, आपके टिंडे हैं, ये इस तरह की कुछ वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हमें कुक करना ही पड़ता है और कुक करते हैं तभी वो टेस्टी और डिलिशियस बनती हैं।
तो हमें कुक करने से क्या फ़ायदा होता है? एक फ़ायदा ये होता है कि जब हम इन सारी वेजिटेबल्स को कुक करते हैं तो जो हार्मफुल जर्म्स होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में नहीं जाने चाहिए, वो ख़त्म हो जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में डिजीज़ को पैदा कर सकते हैं। इसलिए हम लोग भोजन को पकाते हैं, और भोजन को पकाने से भोजन हमारा डिलीशियस भी हो जाता है, नर्म भी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है, और हमारे खाने में अच्छा भी लगता है। तो उसके अंदर हम लोग अलग अलग तरह के मसालों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ कुकिंग, यानी कि हम लोग भोजन को किस किस तरह से पकाते हैं। सबसे पहला है बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब होता है उबालना, यानी कि कोई भी चीज़ जिसको कि हम लोग बॉईल करके खाते हैं, यानी कि जस्ट बर्तन या पैन हमने लिया, उसके अंदर पानी डाला, और जो भी चीज़ हमें बॉईल करनी है, जस्ट लाइक एग्स, अंडे, आलू, कुछ वेजिटेबल्स, राइस एंड दालें, है ना, इन सब को हम लोग क्या करते हैं, बॉईल करके फिर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि ये और ज़्यादा सॉफ्ट भी हो जाते हैं और डिलीशियस भी हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टीमिंग। स्टीमिंग का मीन्स होता है भाप में पकाना, यानी कि कोई भी चीज़ जो कि हम स्टीम करके खा सकते हैं, स्टीम में कुक करके खा सकते हैं। तो वो स्टीमिंग क्या होता है, यानी भाप में कैसे पकाते हैं। उसके लिए हम लोग जैसे पीस हैं, मटर, इडली एंड ढोकला, है ना, ये जो चीज़ें हैं वो हमें स्टीम करके पका के खानी होती है, और उसी से उसका टेस्ट भी आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बर्तन लेते हैं, पानी उसके अंदर डालते हैं, और उसके ऊपर हम एक बर्तन और रखते हैं जो कि हमें स्टीम करना है। जैसे कि इडली का जो मिश्रण है वो हमें वहाँ पर बर्तन में ऊपर वाले बर्तन में डालना होता है, उसके बाद उसको हमें कवर करना होता है, हम फिर फ्लेम स्टार्ट कर देते हैं, तो वो स्टीम के अंदर पकाना होता है। तो हम लोग ढोकला, खमन ढोकला, ये सारी चीज़ें स्टीमिंग के थ्रू पका के खाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्राइंग। फ्राइंग का क्या मीन्स क्या होता है? फ्राइंग मीन्स होता है तलना। कोई भी चीज़ हम तल कर खा रहे हैं, जैसे जलेबी जब चाशनी में डूबती है उससे पहले उसको तला जाता है, डीप फ्राई किया जाता है, बहुत सारे तेल के अंदर उसको डालकर हम पकाते हैं। पूरी, यानी कि पूरी और आलू की सब्जी ऐसे हम लोग खाते हैं कई बार। समोसा, कचौरी, है ना, ये सारी चीज़ें जो कि हम बहुत सारे तेल में डालकर उनको कुक करते हैं या फ्राई करते हैं। नेक्स्ट है हमारा बेकिंग। बेकिंग का मतलब क्या होता है? बेकिंग का मतलब होता है किसी एक बड़े इलेक्ट्रिक ओवन में या फिर हम किसी बर्तन में डालकर किसी चीज़ को कुक कर रहे हैं, तो वो हमारा बेकिंग होता है। और बेकिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं, जैसे केक है, बिस्किट है, बर्न्स हैं, ब्रेड है, ये सब चीज़ें बेकिंग के अंदर आती हैं। नेक्स्ट है हमारा 5th नंबर, रोस्टिंग। रोस्टिंग का मीन्स होता है जो भी चीज़ हम लोग पका के खाना चाहते हैं वो रोस्ट करके खाना है। तो कैसे रोस्ट किया जाता है? डायरेक्टली हम आग पर, यानी कि अपना गैस स्टोव ऑन किया और उसके ऊपर डाल दिया। तो उसके लिए पहले हमें जो भी चीज़ खानी है या रोस्ट करनी है, उससे पहले हल्का सा ऑयल से, घी से हम ग्रीस करते हैं, हल्की सी एक लेयर लगाते हैं, और उसके बाद उसको आग पर भूनते हैं, और वो हमारा रोस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एक और पॉइंट जिसे हम लोग कहते हैं कि बिना बर्तन के हम लोग कैसे या किसके अंदर कुक करें। तो वो है हमारा वो वेसल्स या वो बर्तन जो कि हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, कुकिंग के अंदर हम बहुत सारे इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमारे पास में डेगची होती है, हमारे पतीला होता है, या फिर हम लोग तवे का इस्तेमाल करते हैं या चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, वो हमारे वेसल्स हैं। लेकिन हम लोग कुक किसके ऊपर करते हैं? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोव्स एज वेल एज दैट फ्यूल्स यूज्ड इन दैम आर लिस्टेड बिलो। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के कुकिंग में इस्तेमाल होने वाले चीज़ें हैं। जैसे लाइक पुराने गांव के अंदर अगर हम चले जाएं तो वहाँ पर ज़्यादातर लोग चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं। और चूल्हा क्या होता है? चूल्हा जो होता है वो मिट्टी का बना होता है, उसके अंदर हम लोग वुड यानी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं और लकड़ियों को बर्न करते हैं और उसके बाद उसके अंदर कुकिंग करते हैं। अंगीठी क्या होती है? अंगीठी जो होती है जिसके अंदर हम कोयले का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इजीली अवेलेबल होता है मार्केट के अंदर। अंगीठी को उसके अंदर हम कोयला डालते हैं, उसके बाद हम लोग कुक करते हैं। फिर है हमारा तीसरे नंबर का केरोसिन स्टोव। ठीक है, केरोसिन स्टोव क्या होते हैं? स्टोव होते हैं जिसमें केरोसिन ऑयल जो आता है वो डाल करके हम पकाते हैं।
एलपीजी यानी कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस का स्टोव, जो कि नॉर्मली हम लोग अपने घरों के अंदर गैस इस्तेमाल करते हैं, वो एलपीजी गैस स्टोव है। फिर सोलर कुकर यानी कि हम धूप में पका रहे हैं, जो भी एक तरह का कुकर आता है जो कि हम लोग धूप में रख देते हैं और उसके अंदर हम लोग जो भी चीज़ पकाना चाहते हैं वो सामान भी उसके अंदर रखते हैं और वो डायरेक्टली सनलाइट यानी धूप की किरणों से पकता है। छठा नंबर है माइक्रोवेव ओवन एंड हॉट प्लेट्स। ठीक है, माइक्रोवेव जो एक प्रकार की मशीन है और इलेक्ट्रिक मशीन है, ओवन है जिसके अंदर हम लोग कुक कर सकते हैं जो भी चीज़ आप बनाना चाहते हैं। जैसे आप आजकल लोग पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारी चीज़ें जो है माइक्रोवेव ओवन में इस्तेमाल करते हैं। हॉट प्लेट भी एक और इसी तरह का ही बर्तन है या वेसल है जिसमें कि हम लोग अपने खाने को पका सकते हैं और ये सारी चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रिसिटी से ही चलती हैं। तो ये हमारे बर्तन थे यानी कि वो यूटेंसिल्स थे जिनका हम यूज़ करते हैं अपनी कुकिंग के अंदर। थैंक यू।